سارے کہ راہوں میں ہے پھر وہ جلتا دیا. یہ چہرے ہیں پیارے تو کیوں در بدر سے ہیں, کوئی تو دکھا دے انہیں راستہ. امی، یہ ابیہا نے آج اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر ہینا کا بہت مذاق اڑایا. ان تینوں نے مل کر اسکول میں کھانا کھایا اور وہ الگ میز پر بیٹھی اکیلے کھانا کھا رہی تھی. میں نے دیکھا کہ وہ بہت اداس تھی. امی، وہ ہم تینوں سے مختلف ہے. وہ ہماری عمر سے بہت بڑی لگتی ہے اور اینک بھی لگاتی ہے. اینک کے بغیر اسے بلیک بورڈ پہ لکھا ہوا کچھ بھی صحیح نظر نہیں آتا. ہم تینوں حساب میں اتنی اچھی ہیں، لیکن ہینا میتھس کا ایک سوال حل کرنے میں ہم سے کہیں زیادہ دیر لگاتی ہے. بہت بری بات ہے ابیہا، وہ انگلش اور اردو میں تو بہت لائق ہے. میرے ساتھ پچھلے سال اسکول کے بک کلب میں تھی. اور اینک لگانے میں کیا برائی ہے؟ ابو بھی تو اینک لگاتے ہیں. حاذق بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے ابیہا. حاذق اپنے بارے میں کیوں نہیں بتاتا آپ کو؟ حاذق کی کلاس میں جو بچہ دیکھ نہیں سکتا کوئی بھی اس کا اچھا دوست نہیں ہے. اور جس بچے کا قد تھوڑا چھوٹا ہے حاذق اس سے بھی دوستی نہیں کرتا، اور نہ ہی ہمارے کزن عمران سے دوستی کرتا ہے جو ہے تو ہماری عمر کا لیکن ہم سب سے بہت لمبا ہے دیکھنے میں. امی، میرے دوست میرا بھی تو مذاق اڑاتے ہیں پتلے ہونے پہ، اور اپنا لنچ بھی مجھے کھانے کو کہتے ہیں. جو بچے سننے یا دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے یا چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتے وہ بہت کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. سب بچے مختلف ہونے کے باوجود ایک جیسے ہوتے ہیں. مجھے بتاؤ کہ تم میں سے کل چھٹی کے دن کون کون مووی دیکھنے جانا چاہتا ہے؟ میں بھی جاؤں گا مووی دیکھنے. چلو پھر تمہارے ابو کے ساتھ کل ایک بہت اچھی فلم دیکھ کر آتے ہیں جو بچوں کو شمولیت کا تصور سکھاتی ہے. اس کہانی کا نام ہے ایک چمن کے پھول ہیں سارے. ہمارے دوستوں سے ملیے: نوید، علی، مریم، اقرا اور کومل. میرا نام نوید ہے. مجھے کہانی کی کتابیں اچھی لگتی ہیں. میں بڑا ہو کر بچوں کے لیے اچھی اچھی فلمیں بناؤں گا. میں علی ہوں. مجھے کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق ہے. میں بڑا ہو کر پاکستان کی ٹیم میں کھیلوں گا. میرا نام مریم ہے. مجھے پہیلیاں بوجھنے اور حساب کے سوال حل کرنے کا بہت شوق ہے. میں بڑی ہو کر حساب کی ٹیچر بنوں گی. میں اقرا ہوں. مجھے کمپیوٹر گیمز بہت پسند ہیں. میں بڑی ہو کر ڈاکٹر بنوں گی. میرا نام کومل ہے. میں اقرا کی بہن ہوں. مجھے تصویریں بنانے اور رنگ بھرنے کا بہت شوق ہے. میں بڑی ہو کر مصور بننا چاہتی ہوں. آپ کو کیا پسند ہے؟ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ نوید 6 سال کا ہے. وہ اپنے بھائی اور بہن کے ساتھ گاؤں کے اسکول میں پڑھنا چاہتا تھا. وہ گھر سے دور اسپیشل اسکول جانا نہیں چاہتا تھا. نوید کے امی اور ابو گاؤں کے اسکول کے ہیڈ ماسٹر سے ملنے گئے. ہیڈ ماسٹر صاحب، استاد اور دوسرے بچوں کے والدین نے نوید کے اسکول آنے کی تیاری شروع کر دی. وہ چاہتے تھے کہ نوید کی ویل چیئر آسانی سے اسکول میں جا سکے. ان سب نے مل کر ویل چیئر کے لیے راستہ ہموار کیا
दरवाजा चौड़ा किया और कमरा जमात में जगह बनाई। सब लोग बहुत खुश थे। हर बच्चा नवीद की मदद करना चाहता था। शुरू में नवीद बच्चों की मदद मिलने से बहुत खुश हुआ, मगर कुछ दिनों बाद नवीद तंग आ गया। वो सब बच्चों की तरह अपना काम खुद करना चाहता था। एक दिन मिस ने नवीद से कहा, नवीद, जल्दी से तख्ता स्याह साफ कर दो। नवीद के दोस्त अली ने जल्दी से तख्ता स्याह साफ कर दिया। अब तो नवीद को बहुत गुस्सा आया। कुछ दिनों बाद नवीद ने सबसे पहले काम खत्म कर लिया। मिस ने नवीद से कहा, नवीद बेटा, आप सब बच्चों का काम जमा कर लें। नवीद के साथ साथ अली ने भी काम जमा करना शुरू कर दिया। नवीद जोर से चिल्लाया, अली, मेरा काम करना बंद करो। अली हैरान रह गया। वो बोला, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मैं अपना काम खुद करना चाहता हूँ। अली अपनी तरफ से नवीद की मदद कर रहा था, मगर नवीद सब बच्चों की तरह रहना चाहता था। वो सबसे मुख्तलिफ नहीं होना चाहता था। नवीद ने कहा, मैं भी मिस के काम करना चाहता हूँ। अली ने नवीद से वादा किया कि वो हमेशा नवीद से पूछकर उसकी मदद करेगा। दोनों में दोस्ती हो गई। मरियम भी सबकी मदद करना चाहती है। वो पैदाइशी नाबीना है। शुरू में उसके अम्मी अब्बू उसे स्कूल नहीं भेजना चाहते थे। वो सोचते थे कि कहीं उसे चोट ना लग जाए, और लड़कियों को पढ़ने की भी क्या जरूरत है। मरियम भी सब बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहती थी। मरियम के अब्बू के पास एक भैंस थी। मरियम भैंस से बहुत प्यार करती थी। वो भैंस की देखभाल में अपने अम्मी अब्बू की मदद करती। मरियम की अम्मी भैंस का दूध मोहल्ले वालों को बेचती थी। मरियम देख तो नहीं सकती थी, मगर वो दूध बर्तनों में उंडेलने में बहुत माहिर हो गई थी। वो भरा हुआ बर्तन हाथ में लेकर बता देती थी कि ये कितना दूध है। मरियम पैसों के मामले में भी बहुत होशियार थी। वो नोट और सिक्के छू कर बता देती थी कि वो कितनी रकम के हैं। मरियम की पड़ोसन बानो खाला हमेशा उनसे दूध लेती। एक दिन मरियम घर में अकेली थी। मरियम, मैं हूँ। इस महीने के दूध के पैसे लाई हूँ। मरियम को अकेला देखकर बानो खाला के दिल में बेईमानी आ गई। लो जी, ये 1, 2, 3, 4 और 500 रुपए। वो जोर से बोली। असल में खाला बानो ने 100 के 4 और 10 का 1 नोट मरियम को पकड़ा दिया। अभी खाला थोड़ी ही दूर गई थी कि मरियम ने आवाज दी, खाला रुक जाइए, सिर्फ 410 रुपए दिए हैं। मगर खाला नहीं रुकी। मरियम ने जोर जोर से कहा, पकड़ो पकड़ो, खाला को पकड़ो। मरियम के पड़ोसी जल्दी से आ गए। मरियम ने जल्दी से सारी बात बताई। पड़ोसी खाला को पकड़कर लाए। जब खाला को खूब डांट पड़ी तो इन्होंने बाकी पैसे भी दे दिए। मरियम के अम्मी और अब्बू बहुत खुश हुए। उन्हें एहसास हुआ कि मरियम कितनी ज़हीन बच्ची है। उन्होंने मरियम को स्कूल भेजने का इरादा कर लिया। इकरा 8 साल की है और अपने घर वालों के साथ शहर में रहती है। वो सुन और बोल नहीं सकती, इस वजह से वो सुनने और बोलने से महरूम बच्चों के स्कूल में पढ़ती है। इकरा अपने वालिदैन और छोटे बहन भाइयों से बहुत प्यार करती है। वो भी उससे बहुत प्यार करते हैं। कभी कभी इकरा अपनी बहन कोमल के साथ बाजार चली जाती है। एक दिन वो दोनों ज़ीब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार कर रही थीं। दोनों ने सुर्ख बत्ती को देखा और पहले दाएं, फिर बाएं और फिर दाएं देखा, बिल्कुल उसी तरह जैसे इन्हें सिखाया गया था। जैसे ही इकरा और कोमल ने सड़क पर कदम रखे, इकरा एकदम रुक गई। उसे महसूस हुआ कि कोई बहुत बड़ा ट्रक तेजी से आ रहा है। इकरा ने देखा कि एक बूढ़ी औरत जल्दी से सड़क पार करने वाली है। ट्रक करीब आ गया था। इकरा ने जल्दी से बूढ़ी औरत को अपनी तरफ खींचा। कोमल ने जोर से चीख मारी, अम्मा रुक जाए। बूढ़ी औरत ने दोनों से कहा, बच्चियों, बहुत बहुत शुक्रिया,
آپ دونوں نے میری جان بچائی. पुलिस वाले भी आ गए. بیٹے آپ کو ٹرک کا کیسے پتا چلا؟ इकरा ने इशारों से बताया कि उसे ट्रक अपनी तरफ आता महसूस हो गया था. देखा बच्चों, इकरा सुन तो नहीं सकती थी, मगर इर्द गिर्द की चीजें आम लोगों से कहीं ज्यादा महसूस कर सकती थी. और यहाँ हमारी कहानी खत्म होती है. सलाहियत से महरूम ना कहें, बल्कि मुख्तलिफ सलाहियत के मालिक कहें. अगर कोई किसी एक सलाहियत से महरूम है तो वो यकीनन किसी और सलाहियत में ज्यादा अच्छा होगा. सब बच्चे मुख्तलिफ होने के बावजूद एक जैसे होते हैं. सब बच्चों में खूबियां और खामियां होती हैं. सबकी पसंद और नापसंद होती है. सभी अपने खानदान और दोस्तों से मोहब्बत करते हैं. अम्मी, इस फिल्म में नवीद चल फिर नहीं सकता था, मगर वो उर्दू में बहुत अच्छा था. और हाँ, अली उर्दू में बहुत कमजोर था, मगर क्रिकेट में सबसे आगे था. इकरा बोल और सुन नहीं सकती थी, मगर उसे इर्द गिर्द होने वाली हर हरकत महसूस हो जाती थी. हाँ, और कोमल हिसाब में कमजोर थी, मगर वो बहुत खूबसूरत तस्वीरें बना सकती थी. हाजिक, अभी तुमने देखा कि मरियम देख नहीं सकती थी, पर हिसाब में सबसे तेज थी. तुम्हारी क्लास में जो बच्चा मरियम की तरह नहीं देख सकता, क्या तुम बता सकते हो कि उसमें क्या खूबियां हैं? कभी भी उसे सलाहियत से महरूम ना कहना, बल्कि मुख्तलिफ सलाहियत का मालिक कहना. आज आपने मुझे उन लोगों के बारे में बताना है जो माजूर तो हैं, लेकिन जिनकी माजूरी उनकी कमजोरी नहीं बन सकी, बल्कि उनमें ऐसी खूबियां हैं जो उनकी ताकत बनी. आज हम क्लास में कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे. आप सब ने मुझे ऐसी शख्सियत के बारे में बताना होगा जिन्होंने माजूरी के बावजूद शोहरत पाई. पाकिस्तानी शख्सियत में कौन कौन शामिल हैं? साइमा अम्मार. शाबाश उमर. साइमा अमार 2.5 साल की उम्र से देख नहीं सकती. उन्होंने पाकिस्तान फेडरेशन फॉर फाइटिंग ब्लाइंड्स PFFB में नाबीना लोगों के लिए ऑडियो लाइब्रेरी तामीर की. और बच्चों, इनके अलावा तारिक अयूब. बिल्कुल सही, तारिक अयूब सुन नहीं सकते. वो सऊदी पाक इन्वेस्टमेंट कंपनी में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हैं और एक समाजी कारकुन भी हैं. सर सैयद डेफ एसोसिएशन और ब्रिटिश डेफ एसोसिएशन के मेंबर हैं. अब आप मुझे बैनुल अक़वामी शख्सियत के बारे में बताएं जिन्होंने माजूरी के बावजूद कामयाबी पाई. प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. गुड हाजिक. वो USA के सबसे तवील अरसे तक यानी 12 साल तक सदर रहने वाली शख्सियत हैं. वो पोलियो से मुतासिर थे और व्हील चेयर इस्तेमाल करते थे. अब इनके अलावा एक और शख्स का नाम बताइए. थॉमस एडिसन टीचर. वेरी गुड. इनको तो आप जानते ही होंगे. थोड़े से बहरे और लिखने पढ़ने में कमजोर होने के बावजूद उन्होंने बिजली, रिकॉर्ड प्लेयर और कैमरा इजाद किया. बच्चों, अब आप रिसर्च के जरिए और अपने इर्द गिर्द गौर करके मालूम करें कि इस तरह की और कौन सी मारूफ शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी माजूरी के बावजूद दुनिया में नाम कमाया. अब हम सब मिलकर एक एक्टिविटी करते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आप किस चीज में कमजोर हैं और किस चीज में अच्छे हैं. मैं सबको ये वर्कशीट्स दे रही हूँ जिन पे इस तरह से 2 कॉलम्स बने हुए हैं. आप सब ये सोचें कि आप किन 3 चीजों में कमजोर हैं और कौन सी 3 चीजों में बहुत अच्छे हैं. मेरी लिखाई अच्छी नहीं है. मैं फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता हूँ. मुझे दूर से दिखाई कम देता है. मैं तकरीर बहुत अच्छी करती हूँ. मैं बहुत आहिस्ता भागती और हर रेस में हार जाती हूँ. मैं मैथ्स में बहुत अच्छी हूँ. वेरी गुड.